बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। टेक्नोलॉजी, युवल नोआ हरारी ने अपनी बुक में लिखा कि आइंदा आने वाले दौर में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आइंदा आने वाले दौर में, कि जस्ट नाउ कंटेम्प्रेरी में। एक तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, दूसरा क्लाइमेट चेंज, और तीसरा डिसरप्शन कॉज्ड बाय द टेक्नोलॉजी। दूसरी 2 चीज़ें जो हैं वो तो कॉपरेशन है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो कि ये वो फील्ड है जिसमें कंपटीशन है और बिजनेसेस ने compete करना है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम देखते हैं कि वो आजकल ChatGPT आ गया, वो लिखी हुई चीज़ें भेज रहे हैं, और बहुत से लोग जो है रिडंडेंट जो क्रिएटिविटी है और कॉग्निटिव चीज़ें हैं उनको छोड़ के बाकी जो हैं लोग रिडंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और वो बेशुमार करने के लिए। एरोस्पेस है, उसमें नई टेक्नोलॉजी ज़्यादा, ऑटोनोमस गाड़ियाँ, पहले जहाज़ खुद लैंड होता है उड़ता है बड़ा छंबा लगता था, अब गाड़ियाँ जो हैं उससे ड्राइवर काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएंगे अगर खुद ट्रकिंग आना से। तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है ग्रास रूट लेवल पे, और फिर उसके साथ इन्वेस्टमेंट आगे करने के लिए। ख़ास तौर पे ये जो वर्टिकल्स डेवलप हो रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और जो डीप टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके कम्बिनेशन के लिहाज से। रावलपिंडी में एक पुराना जो हमारा एयरपोर्ट था जो बाहर चला गया, अब वो एयरफोर्स है, उसको उस प्रेमिसेस में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी शुरू हो रही है। उसके अंदर एक इनिशियल प्रोजेक्ट है जिसको हम नाइकेट कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उसके आज प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब इमरान जटाला साहब। वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बताएं फिर हम आगे शुरू करते हैं उसकी बातचीत। Thank you very much, Tahir sir. I'm Imran Jatala. I'm project director for NICAT. NICAT is National Incubation Center for Aerospace Technologies. یہ پاکستان کا پہلا ورٹیکل انکیوبیشن سینٹر ہے جو کہ ایروسپیس ٹیکنالوجیز پہ فوکسڈ ہے. منسٹری آف IT کا ایک ادارہ ہے اگنائٹ پاکستان میں NICs بناتا ہے، نیشنل انکیوبیشن سینٹرز، اور ان کا پرپز یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرپرینیورشپ، اسٹارٹ اپس، ان کو پروموٹ کیا جائے. اور وہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ بیکاز چھوٹا بزنس جو ہے وہ کسی بھی اکانومی میں گروتھ کا انجن ہوتا ہے. سو گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی یہی مشن ہے کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس اور چھوٹا بزنس گرو کرے تاکہ اکانومی گرو کر سکے. اس کے لیے اگنائٹ لیڈ کر رہا ہے اس انیشیٹو کو، اور نائکیٹ جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بٹوین اگنائٹ اینڈ نیسٹیپ، نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. اب لیٹ می ایکسپلین یو کہ نیسٹیپ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کا ایک انیشیٹو ہے جس میں وہ پاکستان بھر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس بنا رہے ہیں، سو دیٹ کہ ہم IT کے اندر جو ہماری ورک فورس ہے اس کو انیبل کریں کہ وہ بزنسز بنائیں، وہ ایکسپورٹس کریں، IT ایکسپورٹس کریں، تاکہ پاکستان میں سائزبل $1 بلین IT کمپنیاں بن سکیں، ٹیکنالوجی میں پاکستان آگے جا سکے، ٹیکنالوجی بزنسز میں. سو نیسٹیپ اور اگنائٹ کے جوائنٹ وینچر سے یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا، اور میں ریپرزینٹ کرتا ہوں نیٹسول کنسورشیم کو. نیٹسول کنسورشیم کے اندر 4 کمپنیاں ہیں. نیٹسول ٹیکنالوجیز پاکستان کی سب سے بڑی IT کمپنی، اور ان کے ساتھ PAC کامرا، ایئر یونیورسٹی اور انوویٹرز گیراج. ہم چاروں مل کے نائکیٹ کو مینیج کر رہے ہیں. اور نائکیٹ میں ہمارا مشن ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایروسپیس انڈسٹری گرو کرے، اور ایروسپیس اینڈ ڈیپ ٹیک دونوں ہمارا فوکس ہے. ٹیکنالوجیز بھی ICT ٹیکنالوجیز، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اور ایروسپیس دونوں ہی ہمارا فوکس ہے. بڑا یہ تو ایک طرح کا جسے کہتے ہیں نا سینرجی ہے، کیونکہ ہوائی جہاز اگر خود بخود اڑے گا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سب کچھ ہے تو ڈیپ ٹیکنالوجی تو اس میں ہے، اور ایروسپیس بھی ہے اگر اس میں اڑنا ہے. تو پاکستان میں اگر سویلین سائڈ کو ہم چھوڑ دیں جو کہ ڈیفنس ہے، اس میں تو کافی ایکسپرٹیز ہیں. کامرا میں اب دیکھیں نا جہاز بنتے ہیں، اگر ایک جہاز اس قابل ہے کہ وہ ریڈار بیس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس سب کو دیکھ کے نیوکلیئر ویپن کیری کر سکتا ہے، تو کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوئی نا. جی بالکل، پاکستان کے پاس الحمدللہ پبلک سیکٹر کے اندر ایروسپیس میں بڑی شاندار اسٹرینتھس ہیں. لائک پاکستان نے جو چائنا کے ساتھ مل کے JF-17 جہاز بنایا ہے. اس کے علاوہ بھی پاکستان میں ایئر فورس کے پاس بہت اچھی کیپیبلٹیز ہیں MRO کی، مینٹیننس اور ری بلڈ آف ڈفرینٹ جو ایروپلینس ہیں ہمارے ان کے لیے. اور ہمارا میزل پروگرام اگر آپ دیکھیں تو ایروسپیس کے اندر پاکستان میں بہت اچھی اسٹرینتھس اویلیبل ہیں پبلک سیکٹر کے اندر.
एरोस्पेस ग्लोबली $700 बिलियन की मार्केट है, जिसके अंदर पाकिस्तान का शेयर नहीं है एक्सपोर्ट्स के अंदर। सो यही एक विजन और मिशन है इस पूरे पर्पस के, इस इनिशिएटिव के पीछे, कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्रो करे, जो कि पहले पाकिस्तान की डिफेंस एंड प्राइवेट सेक्टर नीड्स को फुलफिल करे और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट्स भी करे। एक्सपोर्ट्स भी करें। तो आप समझते हैं कि इसमें साइजेबल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ब्रू करने के लिए आने के इम्कानात हैं, गिवन द लोकल इकोनॉमिक सिचुएशन और सिविल अनरेस्ट पाकिस्तान में, वो सारा उससे काफ़ी हद तक ये इम्यून होनी चाहिए? जितनी बड़े ये चैलेंजेस हैं उतनी बड़ी पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप देखें कि ये NASDAQ जो है वो नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स का, और वो राइट इंग्रेडिएंट्स जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को चाहिए होते हैं वो सारे एक जगह पे लेके आ रहा है। यस, ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो स्लो डाउन ज़रूर कर रहे हैं इकॉनमी को। FDI बहुत लिक्रेटिव नहीं है इस वक्त, अट्रैक्टिव नहीं है पाकिस्तान एज ए FDI मार्केट, बट वी होप कि जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है मुल्क के अंदर तो ये FDI भी ग्रो करेगा। लेकिन इस टाइम में दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज पूरी दुनिया रिसेशन से निकल रही है, और रिसेशन से आगे का जो टाइम होता है वो ग्रोथ का टाइम है। सो दिस इज़ द टाइम टू सेट अप कंपनीज, टू बिल्ड बिजनेसेस। हम तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आई ऑलवेज टीच एंड प्रीच ऑप्टिमिज्म। दिस इज़ द टाइम टू गेट स्टार्टेड। ये जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, इंशाल्लाह वी एज ए नेशन विल प्रिवेल, विल कम आउट ऑफ दीज चैलेंजेस। पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में तो डिफेंस में ख़ास तौर पे काफ़ी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग्स वगैरह भी की बहुत सी, हमें पता ही है। लेकिन अब बहरहाल नो है, आप समझते हैं कि कंड्यूट इसका कोई डेवलप करके सिविलियन यूज़ में भी आपके जो यहाँ पे सेटअप हैं इसके लिए इंड्यूस किया जा सकता है इसको? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन था भाई। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि ड्यूल यूज़ उनका बन सकता है। एयरक्राफ्ट के अंदर और जो एरोस्पेस हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका बहुत अच्छा ड्यूल यूज़ है, जो कि सिविल सेक्टर को बेनिफिट कर सकते हैं। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भी ऐसी बहुत सारी हैं जिन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनकी डिफेंस को भी नीड है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनकी बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं। क्या आपका आगे मतलब गोल क्या है इमीडिएटली, अगर 1 ईयर डाउन द लाइन या 2 ईयर? नाइकैट में हमने एनुअली 50 स्टार्टअप्स लाने हैं। हम 50 स्टार्टअप्स को ला के, हमारा गोल ये है पर्सनली, हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। जो हमारे पास स्टार्टअप आएँ उनकी वैल्यूएशन हम ग्रो करवा दें, हम उनकी वैल्यूएशन 10x करें। लाइक मेरे पास जो पहला कोहॉर्ट आया है उसमें 27 स्टार्टअप्स हैं और इनकी वैल्यूएशन कलेक्टिव इज़ ओवर $5 मिलियन। व्हाट आई वांट टू अचीव है कि एक साल के अंदर उनकी वैल्यूएशन हम 10x कर दें। वो ये स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स रेज करें, ये स्टार्टअप्स बिजनेस ग्रो करें, ये जॉब्स क्रिएट करें, ताकि हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बना रहे हो और फिर अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं। बड़ा अच्छा है अगर ये, तो उसमें क्या एयरफोर्स किस हद तक इसको फ़ायदा दे सकती है अपने नॉलेज और नो हाउ से, मतलब गिवन वेपन को तो आप छोड़ दें सीक्रेट, जो टेक्नोलॉजी उनके पास एक एक्सपोजर उनका होता है। एयरफोर्स के पास बहुत अच्छी स्किल्ड वर्क फोर्स है। उनके पास ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो जॉर्जिया टेक से PhDs करके आए हुए हैं, तो दे हैव वर्क फोर्स एजुकेटेड फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और वो लोग हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हम ग्रो करें। और इसके पीछे एयरफोर्स का विजन भी यही है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्फोसिस और टाटा कंसल्टिंग सर्विस की तरह की $1 बिलियन IT कंपनीज बने। पब्लिक रिस्पांस कैसा रहा है, या जो ओवरसीज इन्वेस्टर है उनका रिस्पांस अब तक कैसा है रहा? सिंस नाइकेट स्टार्टेड लाइक अबाउट 6 months अगो, और अभी पहला कोहॉर्ट आए हुए भी हमारे पास 3 months हुए हैं, अभी तक का रिस्पांस बहुत अच्छा है। नाउ वी आर एक्सपेंडिंग दिस आउट थ्रू लाइक देयर इज प्लेटफॉर्म्स लाइक थ्रू यू, कि हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ लिंक अप हों। हमने पूरी एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेन बिल्ड करनी है यहाँ पे नाइकैट में, जिसके अंदर शामिल है एक इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, एंजल इन्वेस्टर्स का नेटवर्क, एंड देन ए VC फंड। सो हम आवर मिशन नेक्स्ट इज टू ब्रिज दिस इन्वेस्टमेंट गैप टू अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान। जैसा कि आपने सुना, ये डिस्कशन ऐसी नहीं है कि इसे हम एक सेटिंग में ख़त्म कर सकें, टाइम की तंगी की वजह से। हम बॉटम लाइन ये है कि नाउ इट्स एन इनिशिएटिव एंड इट्स कमिंग वेल, और किसी हद तक क्योंकि टेक्नोलॉजी है, डीप टेक्नोलॉजी है, और ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है इसका,
تو کسی حد تک لوکل ریسیشنز اور اس طرح کی چیزوں سے امیون بھی ہوتی ہے، ایک طرح سے کور ہے. اٹس اے گڈ اپرچونٹی. آئی تھنک کنٹریز نے ہمارے سامنے ہیں. ابھی آپ چائنا کا دیکھیں، سی پیک انہوں نے بنایا تھا اور پاکستان کے ساتھ شاید چلتا رہے، لیکن اگلا جو 5 ایئر کا پلان انہوں نے پریزیڈنٹ شی نے اب آنے کے بعد دیا ہے، اس میں بی آر آئی کا اس طرح ذکر نہیں ہے، بٹ ڈیپ ٹیکنالوجی میں بہت بڑی میسو انویسٹمنٹ کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اگر وہ ڈیپ ٹیکنالوجی میں کریں گے تو اس کے آف شوٹس اور سیکنڈریز ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ انیشیٹو. باقی آپ تک ہم اور اس طرح کی لاتے کوشش کریں گے کہ سائٹ پہ جا کے بھی آپ کو دکھا سکیں کہ کیسے اور دیر پرفارمنگ یا چیزیں کیا ہوتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.